بس تیرا گرم گرم شامل ہے کامل ہو یا شامل ہو یا غوث اے رضا یوں نہ بلکھ تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا سبحان اللہ اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں تیرے نظر سے پھیرو سارے علم کے تیر کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث فرماتے ہیں میرا مرید اگر مجھے آواز دے مشرق سے میں مغرب میں ہوں تو میں اس کی مدد کروں سبحان اللہ اور فرماتے ہیں کہ اور جو ہے رجال الحق ان کے پاس جب قضاء و قدر کا معاملہ آتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں میرے علاوہ کہ میں اس کو میرے لیے کھولا جاتا ہے روزن میں اس میں داخل ہوتا ہوں اور پھر میں اس سے لڑتا ہوں حق کے ساتھ میں حق کے لیے میں لڑتا ہوں مرد وہ ہے جو اس سے لڑے اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا لیکن ایک قضا معلق جو کنڈیشنل ہے ایک شبیہ مبرم ہے کہ صفحہ ملائکہ میں وہ مبرم کی شکل میں ہے لیکن اولیاء اللہ کو اور پھر حضور غوث اعظم اولیاء کے سردار سبحان اللہ ان کو خبر دی جاتی ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے کہ اس کے موافق نہ ہو بلکہ اس سے لڑے تو ایک واقعہ اس میں یہ ہے کہ حضرت احمد دباس 521 ہجری میں انہوں نے ایک تاجر کو دمشق کی طرف جانا تھا تو دمشق کی طرف جانا تھا تو اس کو بتایا کہ تو جائے گا تو قتل کیا جائے گا تیرا مال لوٹ لیا جائے گا جانے کا مشورہ نہیں دیا اس کو منع کیا لیکن حضور غوث اعظم نے فرمایا تو جا سبحان اللہ تجارت کر سبحان اللہ سے تو معاملہ کیا تھا معاملہ وہ ایسا ہی ہوا وہ گیا تجارت میں نفع ہوا وہ لوٹ کے آیا تو اس نے کہا تو کیا معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تو جو معاملہ تھا جو اس کے ساتھ میں ہونا تھا اس کو آپ نے ایسی دعا کی کہ وہ خواب میں ہو جائے سبحان اللہ جاگتے میں نہ ہو سبحان اللہ تیر نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر کیا یہ علم کے تیر ہے یا غوث علم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرماتے ہیں ایک واقعہ ہے آپ کے بچپن کا حضور تاج الشریعہ سے اور بہت سارے علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ بچپن کے دور میں عبداللہ اس کے راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں ابن سقا اور حضور غوث اعظم تو ایک اس وقت کے غوث تھے ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کہ وہاں جائیں گے تو ان کے ہاں حاضری دیں گے تو نکلے ابن سقا جو تھا وہ اس نے کہا کہ ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے اور انہوں نے کہا کہ میں سوال کروں گا عبداللہ نے دیکھوں گا کہ کیا جواب دیتے ہیں اے عبد القادر تم کیا کرو گے معاذ اللہ میں سوال کروں گا نا میں ان کی زیارت کروں گا آپ پہنچے مکان میں تھے نہیں پھر وہیں اسی جگہ وہ دکھے وہ بزرگ اور ان کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے اور انہوں نے فرمایا کیوں ابن سقا تو یہ کہتا تھا کہ ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ اور عبداللہ تم نے یہ کہا کہ تم دیکھو گے میں دیکھ رہا ہوں اس سے کہا یہ کہ میں تیرے چہرے میں کفر کی لپٹیں دیکھ رہا ہوں جہنم کی آگ دیکھ رہا ہوں اور ان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا تمہارے کانوں کی لو تک آئی لیکن جو
हलावत है, इबादत की हलावत और ईमान की हलावत, वो तुम्हें नसीब नहीं होगी। और हुजूर गौसे आजम का तो सबको मालूम ही है, वो फरमाया, ऐ बेटे, ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हारे अदब ने अल्लाह और रसूल को खुश कर दिया। मैं देख रहा हूं कल तुम बगदाद में ऐलान करोगे कि मेरा ये कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर सब झुका लेंगे गर्दनें। हाँ, तो उनका मामला तो सबने देखा कि क्या हुआ हुजूर गौसे आजम ने, वैसा ही हुआ। और इब्ने सक्का जो बहुत बड़ा आलिम हुआ, बहुत बड़ा मुनाजिर हुआ और बहुत वजीह था, और बलागत में बहुत उसका नाम हुआ। मुनाजरे में सबको चुप कर देता। बादशाह ने उसको भेजा रोम की तरफ, वहां से पादरियों से मुनाजरा किया, सबको चुप कर दिया। दावत की, उसकी दावत की तो उस बादशाह की, शाह रोम की बेटी पर उसकी नजर पड़ी और उसने कहा कि मुझे इससे रिश्ता कर दो। तो उसने कहा ईसाई हो जा, मैं तेरी शादी कर दूंगा। उसने ईसाई हो गया, मजहब छोड़ दिया। फिर उसका आलम यह हुआ कि बाद में उसको एक ऐसी जलील और लोगों में नफरत पैदा हो, ऐसी उसको बीमारी हुई, उसको सड़कों पर डाल दिया गया, कोई उसको पहचानता नहीं। जब इधर का एक शख्स गुजरा तो उसने पास में पहुंचा और पास में पहुंच के उससे पूछा कि क्या तुम वही इब्ने सक्का हो? हाँ वही हो। अरे तू तो कुरान का हाफिज था, तेरी ये हालत है, तो कुछ पढ़। उसने कहा कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं, सिर्फ सिवाय इसके रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना लौ कानू मुस्लिमीन कफरू मुस्लिमीन। सारी शरिया भी इसी को फरमाते हैं। हाँ, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए, आखिर ये तमन्ना करेंगे कि वो काश वो मुसलमान होते। सिर्फ उसको ये याद था। और उसने कहा कि देखो वो था ऐसा, लेकिन उसका ये मानना था कि उस गौस की बद्दुआ मुझे लग गई। हाँ, तो बुजुर्गों से गुस्ताख न हो, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले बनो, क्योंकि जो बुजुर्गों से मोहब्बत रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन बुजुर्गों के सदका तुफैल में ईमान की हिफाजत फरमाता है। उनके दामन से वाबस्ता जो रहते हैं और जो उनकी तालीमात पर चलते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, तो वो ईमान सलामत लेके जाते हैं। लेकिन जो बुजुर्गों के गुस्ताख होते हैं तो उनका मामला ये होता है कि उनका मामला फिर आए बाएं रहता है। बुजुर्गों से गुस्ताखी जो होती है वो कायम नहीं रहने देती उसको दीन पर, बल्कि वो निकल जाता है। क्यों? एक हदीस में ये आया, सरकार ने फरमाया, हज़रत जिब्रील की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से मोहब्बत करता है तो तमाम रूए जमीन पर उसकी मोहब्बत का ऐलान होता है। हर छोटी बड़ी मखलूक उससे मोहब्बत करती है, हर एक उससे मोहब्बत करता है। लेकिन एक दूसरा पहलू उसका दूसरा भी है कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे गज़ब फरमाता है, जिससे गज़ब फरमाता है तो उसका भी ऐलान होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इससे गज़ब फरमाता है तो सारी मखलूक उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो बात यह होती है कि मखलूक अल्लाह की, तो उसका दिल भी उसी की मखलूक है, उसकी ज़बान भी उसी की मखलूक है, और ये दिमाग भी, सारा जो कुछ है वो मखलूक उसी की है। तो उस आदमी में अक्ल सलीम जो होती है वो उससे जुदा हो जाती है, सलाम करके निकल जाती है, अना तेरे साथ में है, मैं तुझको छोड़ती हूँ, और तू बुजुर्ग का गुस्ताख हुआ, उससे दूर हो जाती है। और उसके जो दिल में बात छुपी होती है वो जबान पे निकलती है, वो जबान पे निकलती है। और फिर ये बात होती है कि वो फरमाया, चू खुदा खाहत के पर्दा कस दरद। जब अल्लाह चाहता है कि किसी का पर्दा चाक कर दे, मखलूक में दिखा दे, तो फिर अल्लाह के बुजुर्गों का, अल्लाह के नेक बंदों का और उलमाए रब्बानीन का
शैतान उसके दिल में डाल देता है, वो उनका गुस्ताख होता है और मखलूक उसको पहचान जाती है ये गुस्ताख है, इससे होशियार रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और फिर उनका मामला जो हुआ अब्दुल्ला का, वो तो मालूम है कि अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं गवर्नर हुआ, ये हुआ, लेकिन जो एक इबादत की हलावत है वो उलमाए रब्बानीन औलिया अल्लाह के नेक बंदे वो जानते हैं, जो उसमें मशक्कत होती है, जो उसमें उनको लुत्फ आता है और जो उनको मजा मिलता है, वो वही जानते हैं। इनको वो नहीं हुआ, इनको हर वक्त मुकदमे का ख्याल, ये ख्याल दिमाग में उनको ये रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बुजुर्गों का गुस्ताख ना रखे, बल्कि उनसे मोहब्बत करने वाला रखे। और जब उस पे मोहब्बत पे कायम रहोगे और उस पे जो उनकी तालीमात हैं उस पर चलोगे और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत है और जो अहकाम है उस पर कायम रहोगे, बात यह है जन्नत किसकी जागीर है? बिल्कुल बेशक सुन्नी की जागीर है, सुन्नी जन्नत में जाएगा। लेकिन जो औलिया अल्लाह है तो उन्होंने अपना अमल करके दिखाया, नमाज पढ़ के दिखाई, और जो गुस्ताख है उनसे नफरत जैसी थी वैसी करके दिखाई और वैसा बताया। तो बात क्या है कि मासियत से बच, इज्तिनाब कर, अल्लाह की मासियत से बच और ताआत में डूब और उनके जैसा बनने की कोशिश कर, उनके कदमों पर चलने की कोशिश कर, उस पर चल, क्योंकि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा वही नहीं बहकेगा, वरना इस सिरात मुस्तकीम जो है सीधे रास्ते पर शैतान भी बैठे हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, आओ हमारी तरफ आ जाओ, आओ हमारी तरफ आ जाओ। लेकिन जो बुजुर्गों ने दिखा दिया और उनके नक्शे कदम पर चला, और सुनो साफ साफ एक बात और सुन लो, जो जमीन के ऊपर है ताज शरिया का ये पैगाम है और तमाम बुजुर्गों का ये पैगाम है, जो जमीन के ऊपर है और जो जमीन के अंदर हक की तालीम देते हुए, सच की तालीम देते हुए इस दुनिया से चले गए, अब वो ऐसा सच है जो बदल नहीं सकता। हाँ, जमीन पर रहने वाला अल्लाह महफूज रखे बदल सकता है, लेकिन जो जमीन के अंदर चला गया हक की तालीम देते हुए वो बदल नहीं सकता। तो अब जो भी है कहीं को हो वो उसको इसी तौर पर देखा जाएगा। जो जमीन के अंदर बुजुर्ग चले गए उनके नक्शे कदम पर है तो ठीक है, नहीं तो हमारे लिए बुजुर्गों की तालीम बहुत है, बस। बेशक। और फिर ये तालीम देते हुए गए, अख्तरे कादरी खुल्द में चलते, खुल्दवा है, हाँ, उस पर चलोगे और मासियत से बचोगे अगर उस पर मुसिर ना रहे। क्यों? बात यह है कि उसके लिए शफाअत के लिए ईमान जरूरी है, ईमान होना जरूरी है, और आदमी गुनाहों पर मुसिर हो, उसी पर मुब्तला रहे, बार बार करता रहे, तौबा भी ना करे, और तो खदशा यह है कि कैफियत में आदमी जब ऐसा होता है और तौबा करता है और उससे बचने की कोशिश करता है तो ईमान की कैफियत में उसमें इजाफा होता है। और अगर उसमें मुब्तला रहता है, उसी पर मुसिर रहता है, तो उसमें कमी का भी वो है, और कहीं ऐसा ना हो कि ईमान सल्ब हो जाए, ईमान का तोता उड़ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला उससे महफूज रखे, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उस पर चले तो फिर जन्नत हमारी जागीर है। हाँ, क्योंकि वो फरमाते हैं कि तू कमाल वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ, मैं तो हर दौर का, हर दहर का कमाल वाला, ऐ रज़ा यूं ना बिलख, तू नहीं जय्यद तो हो, हर सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। और उन्होंने फरमाया मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद तू घबरा मत, गम मत कर, डर मत। क्यों? यदि अला मुरीदी का समाए अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है कि जैसे आसमान जमीन पर छाया हुआ है, तो हम ऊपर हैं जमीन के तब भी उनके साए में हैं, और जमीन के अंदर जाएंगे तब भी उनके साए। तो उस पर कायम रहोगे। तो ये कह के गए ताजुश शरिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। अगर उस पर कायम रहोगे, जो पैगाम दिया है उस पर कायम रहोगे और उसको सलामत लेके जाओगे, तो फिर
یہ مت کہنا انہوں نے فرمایا کہ پھر اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنے غلاموں کو سب کو ساتھ لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اعلیٰ حضرت۔